حمد فاطمة سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة سلام الله عليها فقلت عليك السلام وقال إني أجد في بدني ضعفا فقلت ليسك بالله يا بعض من الزور فقال يا فاطمة سلام الله عليها ائتيني بالكساء يماني فأعطيني به فأتيته بالكساء يماني فأتيت به وشرت أنظر إليه وإذا بدر يطلع كان البدر في تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا سعة وإذا بولد الحسن عليه السلام فقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم جدك تحت الكساء فأكبر الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله يتزعم لي أن أدخل معك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال وإليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد لك فدخل ما تحت الكساء فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم جدك وأخاك تحت الكساء فأتاني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من ابتلاه الله وتزال دين الحلم معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتك الذين لك فدخل ما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة سلام الله عليها إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم وما ولدك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتزعم لي لأن أكون معكم تحت الكساء قال له وإليك السلام يا أخي ويا وسيم يا خليفتي وصائب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطا يا رسول الله يتزعم لي أن أكون معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال وإليك السلام يا بنت ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله لترافي الكساء وأما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي دم دمي ودم دمي ولمن ما يولمهم يأذنوني ما يأذنهم على أرم لمن حرمهم وسلم لمن صالوا ولمن عداهم ومحب لمن أحبى منهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
शांति के साथ
भागा है नबी को
अरे वो उंगली कटाने को भी जो मुनकिर है देखो समझता है खलीफा, जो मुनकिर है देखो समझता है खलीफा, बेदीन मुसलमान है दीदार नहीं है, शेख तू जन्नत में कभी जा नहीं सकता। इसकी दलील दे रहा हूँ अपने मुझसे। ऐ शेख तू जन्नत में कभी जा नहीं सकता, अरे जन्नत है तेरे बाप का घर बार नहीं है, और बरसाया है चेहरों पे जिसे बोग़्ज़ अली ने, बरसाया है चेहरों पे जिसे बोग़्ज़ अली ने, क्या शेख के चेहरे पे वो फिटका फिटकार नहीं है, और रिज़वान तबर्राए मवाली है जभी तू, रिज़वान तबर्राए मवाली है जभी तू, लड़ता है मगर हाथ में नहीं है। देखिए बाद में दुआ इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत। नकवी साहब के दिशान नकवी साहब के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए, सबका चल के आना शादी कबूल मंजूर। कम ज़र्फ़ सकीफ़ा वालों की हर चाल का पैकर खुल जाए, कम ज़र्फ़ सकीफ़ा वालों की हर चाल का पैकर खुल जाए,
तारीख के ऐन तराजू में मासूम का मनसब तुल जाए। तारीख के ऐन तराजू में कम ज़र्फ सकीफा वालों की हर चाल का पैकर खुल जाए। तारीख के ऐन तराजू में मासूम का मनसब तुल जाए। और मैं कह रहा हूँ नेज़े की नोक पे मौला ने कुरान पढ़ा ही इसलिए था नाना के जहन की इस्मत से हिज़ियान की तोहमत खुल नेज़े की नोक पे मौला ने कुरान पढ़ा ही इसलिए था नाना के जहन की इस्मत से हिज़ियान की तोहमत धुल जाए। बज़ाहिर आखिरी वक्त था मेरे मौला का। जी जी एक सलवात से मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए बज़ाहिर आखिरी वक्त था। क्या बात है, वरना ये हस्तियां वक्त से पहले की हस्तियां हैं। इनके कोई पहले या आखिरी वक्त इनका नहीं होता। बज़ाहिर आखिरी वक्त था मेरे मौला का। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि असहाब शहीद हो गए हैं, भाई शहीद हो गए हैं, औलाद शहीद हो गई। बज़ाहिर कोई ना बचा मेरे मौला के पास। उस वक्त इस्तगासे कुछ बुलंद किए मेरे मौला ने। उनमें से एक इस्तगासा बड़ा मशहूर है, हल में नासिर। मैं एक बात करना चाहता हूँ। अच्छा, इस इस्तगासे को मुझसे बेहतर जानने वाले हजरात तशरीफ फरमा है। इसमें जो मौला ने नुसरत के लिए बुलाया है, ये नुसरत का सीगा भी मुस्तकबिल के लिए, यानी कि मैं जुमला कहना चाहता हूँ कि वक्त के हुसैन के लिए नुसरत तलब कर रहे थे। लेकिन ये बात अलग है, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ। अब अगर ये समझा जाए कि मौला को ये बात तो तय है कि अफरादी कुव्वत की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अफरादी कुव्वत की जरूरत होती तो मौला गाजी को कम से कम लड़ने की इजाजत दे देते। और मौला जनाब अली अकबर मौजूद हैं, असहाब मौजूद हैं, भाई जितनों को भी भेजा है शहादत का इज़्न देकर भेजा। चलो सब शहीद हो भी गए, उसके बाद मौला को अगर अफरादी कुव्वत की, अगर सामने वालों को खत्म करने की जरूरत थी तो वो वक्त के इमाम थे। उस पर इमामत का रुतबा और दर्जा तो चलो एक तरफ रखते हैं, वो अली के बेटे थे। कह देते गर्दने सरों से, गर्दने जो है वो जिस्मों से जुदा हो जाती, बदन से जुदा हो जाती। मौला सोच लेते ऐसा हो जाता, मौला अपनी आंख से देख लेते, आंख के जलाल से वो लोग मर जाते। तो ये तो तय हो गया कि मौला को अफरादी कुव्वत की जरूरत नहीं थी। फिर मौला ने इस्तगासा क्यों बुलंद किया, जो वजह मेरी समझ में आई है। मैं कह रहा हूँ जरूरत गर न थी तो फिर ये हल मिन के मकासिद क्या। जरूरत गर न थी, अफरादी कुव्वत की जरूरत नहीं थी, जरूरत गर न थी तो फिर ये हल मिन के मकासिद क्या। जरा सोचो कि इस ज़र्बे ज़बां की ज़द कहां तक है। वली जिन्नो मलक आए, हजारों अंबिया आए, बताना था हुसैनी सल्तनत की वली जिन्नो मलक आए, हजारों अंबिया आए, बताना था हुसैनी सल्तनत की हद कहाँ तक है। बस मैं नज़्म का एक छोटा सा टुकड़ा इजाज़त चाहूँगा। मौला दर्जात बुलंद करे ज़ीशान अंकल के, मुझे याद है मैं छोटा सा हुआ करता था, मुझे हर मजलिस में अपने यहाँ की कम अज़ कम कहा करते थे कि आपने ज़रूर हाजिरी देनी है। मौला उनको करवट करवट जन्नत। मौला दरबार गए, ये मदीना से जिस वक्त रवानगी से पहले 2 दिन 28 रजब से 26 या 27 रजब की बात। मौला दरबार गए, दरबार वलीद, और उसने कहा कि खत आया है शाम से। मैं फजाइल के 2 जुमले पढ़े। उसने कहा जी खत आया है शाम से, क्या लिखा हुआ है खत में। उसने कहा जी यजीद कहता है या तो हुसैन बैत करें या फिर वतन छोड़ दें, मदीना छोड़ दें। एक मरतबा जब मौला ने सुना कि ये 2 बातें हैं, कंडीशन है, या तो मैं बैत करूं या फिर वतन छोड़ूं, मौला ने मुस्कुरा के उसकी जानिब देखा, मुस्कुरा के फरमाते हैं लिखो ये इब्ने मुआविया को हुसैन घर से निकल रहा है। बैत तो मैंने करनी नहीं, वो लिखो ये इब्ने मुआविया को
हुसैन घर से निकल रहा है, मिसरा पढ़ रहा हूँ, लिखो ये इब्ने मुआविया को। हुसैन घर से निकल रहा है, हुसैन फरमाते हैं उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। हुसैन फरमाते उसे लिख दो, नहीं सुबह का यकीन लेकर हर एक गुंजा मचल रहा है, यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। उसकी जुर्रत, उसने मुझसे बैत मांगी है। हुसैन फरमाते उसे लिख दो, बना रहेगा निशाने इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। हुसैन फरमाते हैं कि बड़ा मशहूर जुमला मेरे मौला का कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत कैसे करे, क्यों करे। हुसैन फरमाते हैं कभी हुआ है मिजाजे आदम गरूर शैतान से खम हुआ हो, मैं उसकी बैत कैसे करूं, ये नहीं, मुझ जैसा उस जैसे की बैत, पूरी कैटेगरी मौला ने एक क्लास डिफाइन कर दिया। हुसैन फरमाते हैं कभी हुआ है मिजाजे आदम गरूर शैतान से खम हुआ हो, कभी हुआ है कोई उजाला शबे खबासत से नम हुआ हो। मैंने मिसरा पढ़ा, कभी हुआ है मिजाज आदम गरूर शैतान से खम हुआ हो, कभी हुआ है कोई उजाला शबे खबासत से नम हुआ हो। हुसैन फरमाते किसी भी नमरूद के सितम से कोई बराहीम कम हुआ हो, कहीं नहीं के फिरौन जैसे से अज़्म मूसा को गम हुआ हो, कहीं नहीं के फिरौन जैसे से अज़्म मूसा को गम हुआ। उसने कहा नहीं मौला ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हुसैन फरमाते अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बताओ फिर के हुसैन जैसा यजीद जैसे का साथ देगा। अरे कहाँ लिखा है कोई मोहम्मद अबू जहल का भी साथ कहाँ लिखा है कोई मोहम्मद, बताओ फिर के हुसैन जैसा यजीद जैसे को हाथ देगा। कहाँ लिखा है कोई मोहम्मद अबू जहल का भी साथ देगा। हुसैन फरमाते हैं कि उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, उसने जो मुझसे बैत का तकाजा किया है वो दर हकीकत जानता ही नहीं कि मैं हूँ कौन, उसे खबर ही नहीं नबूवत के दिल की धड़कन का चैन हूँ मैं, उसे खबर ही नहीं नबूवत के दिल की धड़कन का चैन हूँ मैं। मिसरा पढ़ रहा हूँ, जहाँ से सुबह यकीन जागे वो चश्मे राहत की ऐन हूँ मैं, जहाँ से सुबह यकीन जागे, जहाँ से सुबह यकीन जागे वो चश्मे राहत की ऐन हूँ मैं। हुसैन फरमाते वो जानता ही नहीं मुझे के निजाम वहदत की जैन हूँ मैं, कसम खुदा की खुदा गवाह है हुसैन था मैं हुसैन। मौला फरमाते हैं और ये जो मेरी हथेली है मैं बैत करूं भी तो कैसे करूं, ये सिर्फ हाथ रखने की बात नहीं है। मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे। मैं यहाँ पर एक बात करना जरूरी समझता हूँ आपकी इजाजत से। देखिए जो हुज्जत होती है एक वक्त की, वो अपने से पहले आने वाली हुज्जतों पर भी हक विलायत रखती है, यानी कि वो अपने से पहले आने वाली हुज्जतों की भी वली हुआ करती है, हुज्जत हुआ करती है। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, बड़े मुकद्दर वाले हैं आप लोग, उस इमाम की रैयत है। पहले 1.25 लाख अंबिया और आइमा का जितना सिलसिला, जितनी हुज्जतें आ चुकी हैं वो सब उनकी मुक्तदी होंगे। ऐसे इमाम की आप लोग रैयत है। मौला इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। मौला हम सबको इमाम ज़माना के नासरीन में शुमार फरमाए। तो अब मोहम्मद तो
हुकूमतें आकर गुजर चुकी थी। तो मौला फरमाते हैं और वो वक्त के हुज्जत थे मेरे मौला हुसैन, जिस वक्त की ये बात हो रही है। तो मौला फरमाते हैं मेरा हाथ कोई आम हाथ नहीं, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को खुदा के बिल्कुल करीब समझे, बिल्कुल करीब। मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को खुदा के बिल्कुल करीब समझे। हुसैन फरमाते सवारे दोषे रसूल जाने, रसूल जैसा तबीब समझे। अरे मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या बदनसीब मुझे तो आदम समझ ना पाए, मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या बदनसीब समझे। मैं 4 सतरें पढ़ के ज़हमतें तमाम करने लगा और उसने जब कहा ना मौला आप वतन क्यों छोड़ रहे हैं, एक हाथ रखने की तो बात है, बस हाथ रखते हैं हाथ पर बैत हो जाएगी और आपको ना वतन छोड़ना पड़े ना सब करना पड़े। मौला ने फरमाया तू समझा ही नहीं कि पढ़ा हो गोरे सितमगर पे जिस तरह कुरान। मैं उर्दू बोलने वालों में पढ़ रहा हूँ। हुसैन फरमाते तुमने समझा ही नहीं, बात सिर्फ हाथ रखने की नहीं है। पढ़ा हो गोरे सितमगर पे जिस तरह कुरान, पढ़ा हो गोरे सितमगर पे जिस तरह कुरान, जमीने जबर पे इस्मत का फूल यूं रख दूं। अली के लाल ने इब्ने मुआविया से कहा बशर के हाथ पे अल्लाह का हाथ क्यों? अली के लाल ने इब्ने मुआविया से कहा बशर के हाथ पे अल्लाह का हाथ क्यों रखो। दुआ है इस जिक्र के वारिस का जल्द अज जल्द ज़हूर हो, इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए एक सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, कुल ईमान, नारा हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले
बाबा से बुलंद सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस घड़ी बरसार अली बोलते हैं जिस घड़ी पर सर मैदान अली बोलते हैं कांपने लगते हैं जिस घड़ी बरसर मैदान आबरू में अपने मुहिब्बों की सदा से पहले आबरू में अपने मुहिब्बों की सदा से पहले मुश्किलें करने को आसान अली बोलते हैं मुश्किलें करने को आसान अली बोलते हैं और बार आपने सहाबा से मोहम्मद ने कहा बारहा आपने सहाबा से मोहम्मद ने कहा रख दो जुज़दान में कुरान मोहम्मद वाले मोहम्मद और शब मेराज मोहम्मद की समात की कसम क्या बात शब मेराज मोहम्मद की समात की कसम इसमें शक का नहीं इम्कान इसमें शक का नहीं इम्कान अली मोहम्मद वाले मोहम्मद ये तो महशर में खुलेगा सर हौज़े कौसर ये तो महशर में खुलेगा सर हौज़े कौसर किसको अपना किसे अनजान किसको अपना किसे अनजान अली बोलते हैं अपने नुकसान पे खामोश है खालिक की तरह अपने नुकसान पर खामोश है खालिक की तरह हो अगर दीन का नुकसान हो अगर दीन का नुकसान अली बोलते हैं और आलो कुरान से लाजिम है
तमस्सुक रखना, आलो कुरान से लाजिम है तमस्सुक रखना। जो मोहम्मद ने कहा जो मोहम्मद ने कहा अली बोलते हैं। बोझ रखते हैं सदा यूं तो अली से दिल में, बोझ रखते हैं सदा यूं तो अली से दिल में। वक्त पढ़ने पे मुसलमान, वक्त पढ़ने पे मुसलमान अली बोलते हैं। लश्कर दीन को ललकार रहा है मरहम, लश्कर दीन को ललकार रहा है मरहम। चुप है सब दाश्त जिस घड़ी पर सर पर मुसीबत है।
हुआ, सजदे में सर माँ का तन से जुदा हुआ, फरियाद जिब्राइल से महशर बपा हुआ, और पड़ गया के भाई से अब शेर छोड़ गई, ज़ारा का घर रसूल की सरकार लूट गई, ज़ारा का घर रसूल की सरकार लूट गई। तो नबी की याद पे क्या क्या जफा हुई, बिनते अली असीर हुई, बेरदा हुई, बेमार खस्ता हाल की अच्छी दवा हुई, हाय में जले तो और क़यामत बपा हुई, बालों का शोर था ना मेरा दाम निकल गया, ऐ मेरे बेज़ुबान तेरा झूला भी जल गया, ऐ मेरे बेज़ुबान तेरा झूला भी जल गया, कसी वो गुर्बत आले अबा किरा, आफत का बल गज़ब का अंधेरा बला किरा, पहली वो फुरक़त शहे गुलगू क़बा किरा, रोने की पीटने की अलम की अज़ा किरा, बच्चों की जाने जान पे सदमे बड़े रहे, शबर जुलसी हुई कनात में शाबर पड़े रहे, जुलसी हुई कनात में शाबर पड़े रहे, मोहलत जो जालिमों के सितम से मिली जरा, बच्चों के ढूंढने को चली बिन्ते मुर्तज़ा, जब दुख्तरे हुसैन का पाया न कुछ पता, दरिया की सिमत मुड़ के पुकारी बसत पुकार, बाहर पे और ताज़ा गुजर गई, अब्बास कुछ खबर है सकीना किधर गई, अब्बास कुछ खबर है सकीना किधर गई, ये कह के कत्ल गाह में मैं बुका गई, सुए नशेब दुख्तर खैरुन्निसा गई, कानों में एक यतीम की आवाज आ गई, देखा वो हाल कांप गई, थर थर आ गई, एक बच्ची एक लाश पे कुर्बान होती है, मुँह से न बोलने का गिला करके रोती है, ज़ैनब करीब जाके पुकारी महालिज़ा, है तू किस गरीब की बची है मैंने सा, तुतला के वो यतीम पुकारी ये बार बार, इनकी नूर इनकी गुलज़ा, रोकर ये कह रही हो दौड़ के
इंतशार है सब घर को इंतजार। मादर भी बेकरार है, ख़ाहर भी अश्कबार। मुझको ये आस कब थी कि अब तो को पाऊंगी। लो बारी कर चलो मैं खपा कर सुनाऊंगी। है ये वक्त और ये आंधी ये इंतशार। जंगल का भी न खौफ किया मेरी गुलजार। बेसर पड़े हैं दश्त में लाशें बहाले। क्यों कर शनाख्त कर लिया बाबा को मैंने सार। हर आज़ू पामाल बदन पाश पाश है। हाँ हो न हो ये कासिम मुर्सल की लाश है। हाँ हो न हो ये कासिम मुर्सल की लाश है। उसने कहा यही मेरे बाबा है मैं फिदा। मैं दश्त में पुकारती फिरती थी जा बजा। बाबा किधर है कोई बता दे पाए खुदा। इस लाश ने पुकारा के बेटी इधर को आ। इसको मेरी फुगा से अज़ियत बड़ी हुई। मैं पीटने लगी तो ये लाश उठ खड़ी हुई। जब गुलचारा में तुर्बते नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, बोले ईमान, नाराए हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुरूद पर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जीते हैं कैसे सबको बताया हुसैन ने। जीते हैं कैसे सबको बताया हुसैन। बताया हुसैन ने। लबैक या हुसैन सिखाया हुसैन ने और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु कैसे सबको बताया हुसैन ने। क्या है हुसैन अब ये खुदा ही बताएगा। खुदा ही बताएगा। वाह 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 वाह। क्या है हुसैन अब ये खुदा ही अल्लाहु अकबर, बताएगा कि क्या है खुदा ये सबको बताया हुसैन ने। हुसैन ने। हर कौम को हुसैन ने बख्शा है हौसला।
है बख्शा है हौसला के देखा नहीं है अपना पराया हुसैन ने हक है, हक है, हक है, हक है, हक है। बेशक 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 जीते हैं कैसे सबको बताया हुसैन ने। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक यही कह रहा था, बेशक बेशक मजलिस इस्तिगासा शबीर का जवाब। वाह वाह वाह, हक है, हक है, हक है। शबीर का जवाब वो आ गया है जिसको बुलाया। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बेशक 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 बुलाया हुसैन, हुसैन ने, हुसैन ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिज़्क़े हलाल शर्त है नुसरत के वास्ते। रिज़्क़े हलाल, जी जी, रिज़्क़े हलाल शर्त है नुसरत के वास्ते। मक़तल में बार बार बताया। बार बार बताया। बताया हुसैन ने। जियो जियो जियो। आली कमर ये नाज है उम्मुल बनीन को। आली कमर ये नाज है उम्मुल बनीन को के झूला मेरे पिसर का झुलाया। हुसैन ने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो आ गया कि जिसको बुलाया हुसैन, बुलाया वाह 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 वाह, हुसैन वाह वाह। जीते रहो, खुश रहो, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे हैदरी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल मुजरिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन व आखिरीन नबिय्यिना अबिल कासिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद किताबिल मजीद
वफ़ुरक़ानिहिल हमीद वक़ौलुहुल हक़ असदक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, मवालियाने हैदर करार, मातमदाराने इमाम मज़लूम, बीबी आपका फर्श अज़ाए हुसैन पर चल कर आना अपनी बारगाह में आगाज़ मजलिस में आपसे मुल्तमिस हूँ कि सैयद ज़ीशान हुसैन नकवी व इनके वालिद बुज़ुर्गवार भाई और दीगर जितने मरूमीन और अपने तमाम मोमिनीन और दीगर जितने मोमिनीन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन सब के लिए एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास। मिल के बावाज़े बुलंद सलावा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह इंतहाई बेहतरीन अंदाज में आप ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद समाअत फरमा रहे हैं और आपकी समाअतों की बालिगी के लिए वैसे अली भाई के बाद शेर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी इजाज़त से 2 मिसरे आपकी ज़हनों की बालिगी के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितने मुसलमान चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, रसूल पाक के हुक्म के मुताबिक 73 फ़िरके हैं, हर फ़िरका इस कोशिश में है, लगन और ख्वाहिश ये है कि किसी तरह जन्नत का हसूल मुमकिन हो। मकसद हर इबादत, हर रियाजत, हर नेक काम, उसका मकसद और महवर ये है कि हमें जन्नत मिल जाए या दोज़ख का खौफ है कि वहाँ क्या क्या भुगतना पड़ेगा। तो फकत पूरी मुस्लिम दुनिया, तमाम मुसलमान इसी तगदो में हैं और 2 मिसरों में वाज़े कर रहा हूँ कि जन्नत कहते किसे हैं और दोज़ख किस शय का नाम है। जन्नत किसे कहते हैं और दोज़ख की हकीकत क्या है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जन्नत अली के सजदे वाफिर की है ज़कात। साहिबाने बैठी है, ज़कात 2.5%। जिसकी इसमें शक की जरूरत नहीं है। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, इनके फजाइल को मानना है, तस्लीम करना है, सोचना नहीं कि ये कैसे। अर्ज कर चुका हूँ, मैं मुसलसल अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान ने कहा कि आदम बिन माँ बाप की आए तो भी तस्लीम करना है, सोचना नहीं कि ये कैसे। ईसा बगैर बाप के आए, मूसा का आसा अज़दहा बन गया, मूसा ने आसा पानी मारा, 12 रास्ते बन गए। ये पूछना नहीं है। देखिए कुरान भी तस्लीम की मंजिल पर, मासूमीन भी तस्लीम की मंजिल पर। अब ये पूछना नहीं कि कैसे। देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ आपके जहनों को मुतवज्जो पाकर कि नमाज में, हर नमाज में 2 रकात नमाज पढ़े, 4 रकात पढ़े, वाजिब है कि आपने सूरह अलहम्द पढ़नी है। वाजिब। मेरा दिल चाह रहा है
कुरान की 113 सूरतें और भी हैं। ना ना मेरा दिल चाहे मैं सूरह नूर पढ़ूं, नहीं मेरे दिल बड़ा चाह रहा है कि आज अल्लाह से राज़ो नियाज करने सूरह यासीन पढ़ूं, ना ना सूरह हलाता पढ़ूं, सूरह मुज़म्मिल पढ़ूं, सूरह मुदस्सिर पढ़ूं। नहीं, कहा कि हुक्म है, बेशक अपनी मर्जी नहीं, जो कह दिया, जो कुरान कह रहा है उसके मुताबिक अमल करना है। तो यहाँ भी परेशानी की जरूरत नहीं, हीलो हुज्जत की जरूरत नहीं। जो उनके फजाइल हैं वो हैं, अगर मोमिन हो तो सुनना पड़ेगा। दलीलें भी बहुत, लेकिन मैं यस कर रहा हूँ कि 2.5% था और मैंने मिसरा फिर वहीं रह गया। 2 मिसरे आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ कि जन्नत और दोज़ख है क्या। जन्नत अली के सजदे वाफिर की है ज़कात। सजदे वाफिर मैं क्या डेफिनेशन दूंगा, जिसकी एक ज़रबत, जिसकी अल्लाह की नजर में एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल है। बुजुर्ग जानते हैं सकलैन कहते किसे हैं? जी जी अज़ल से लेकर हाँ जी अब तक जितनी मखलूकात हैं जी जी वो अपनी इबादत करती रहे, ऐसे ही अज़ल से लेकर कयामत तक जी जी इबादतें करती रहे। इसे फुकहा ने कहा ये सकलैन की इबादत है। और ये अली का फेल कौन सा है? ये पहले दर्जे की इबादत नहीं, ये जिहाद छठे दर्जे की बात है। जी 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 जिहाद छठे दर्जे की बात। जिस अली के छठे दर्जे की इबादत का एक दर्ज सकलैन की इबादतों से अफजल हो, उसकी नमाज से क्या कहना, उसके सजदे का क्या शुमार, क्या गिनती। और मैं कह रहा हूँ, और अली कौन है? अली वो जो सोए भी तो फकत एक रात, सारी रात इबादत में गुजर गई, सजदे में गुजर गई। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, मिसरे वही 2 हैं कि जन्नत अली के सजदे वाफिर की है ज़कात, दोज़ख तो फातिमा की रंजिश का नाम। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। मोहम्मद वाले मोहम्मद दुनिया सोच रही है कि जन्नत चाहिए है, दोज़ख से बचना है। दोज़ख है ही कुछ नहीं, दोज़ख है ही क्या? जी जी रंजिशे फातिमा। बस आप तारीख में देखते चले जाएं, जिससे बीवी ना रहा, उनका दामन पकड़ने से फकत दोज़ख ही मिलेगी, और कुछ ना मिलेगा। अब देखते चले जाइए। और अज़ीज़ान गिरामी, यही तो कमाल है इस घराने का। इस हमारे 5वें इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, किसी ने सवाल किया कि ये दुआ क्या है? बहुत हो चुका है। देखिए, बंदगी की मेराज है दुआ। आप नमाज पढ़ें, दुआ ना करें, नमाज आपके मुंह पे मारे। रोजा रखें, दुनिया की कोई इबादत अगर दुआ के साथ मुत्तसिल नहीं है तो वो इबादत नहीं है, दुआ बंदगी है। बेशक बेशक। किसी ने सवाल किया 5वें मौला से, तो कहा दुआ क्या है? इमाम ने फरमाया कि दुआ फकत अल्लाह के हुजूर हाथ उठाने का नाम दुआ नहीं है। दुआ सिर्फ ये नहीं है कि आपने हाथ उठाए और चंद कलिमात अदा कर दिए, तो ये अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं है। दुआ के लिए पहली शर्त ये है, दुआ के लिए पहली शर्त ये है कि इंसान उसके सामने अपने आप को हकीर जाने, कि मैं ये इसलिए मांग रहा हूं तुझसे कि मेरे इख्तियार में नहीं, मेरे बस में नहीं, मेरे बस में नहीं, इसलिए मैं तेरे आगे दस्ते दुआ बुलंद कर रहा हूं। और दूसरी शर्त रखी, इमाम कहते हैं दूसरी दुआ की शर्त ये है कि उस परवरदिगार को कादिर मुतलिक माने कि मैं जो मांगूंगा वो अता करेगा। ये बहस बाद में कि वो अता भी किन के सदके में करे, लेकिन
अपने आप को नातवा और कमजोर जानो। दुआ की पहली सीढ़ी कि मैं मजबूर, मैं बेकस, मैं लाचार, परवरदिगार तू ही अता कर सकता है। और दूसरे तू कादिर मुतलक है, तू ही अता करने वाला है और मुझे कोई अता ना करेगा। ये दुआ का तरीका सिखाया और इसी तरीके पर अंबिया ने अमल किया। देखिए ये मासूमीन ने जो दुआएं तालीम की हैं ये वैसे ही नहीं, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। आप जरा सहीफा कामिला उठाइए, सहीफा सजादिया उठाइए, दुआएं सिखाई कि किस तरह दुआ करनी है। मासूमीन ने तरीका सिखाया पर हमें उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। और कुरान में मुख्तलिफ अंबिया की दुआओं का तज़किरा है। एक सूरह साफात में हजरत इब्राहिम की दुआ का तज़किरा 100 नंबर आयत है जिसमें हजरत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं कि बारे लाहा मुझे एक फर्जंद अता कर जो सालेहीन में से हो, मिनस सालेहीन। यहाँ अब एक और दर्स मिल रहा है कि जब भी औलाद के लिए दुआ मांगो तो फकत औलाद ना मांगो, औलादे साले की दुआ करो। औलादे साले के लिए दुआ हो, दफ्ते दुआ बुलंद करो। दुआ की इब्राहिम ने दुआ की, आपने कुरान में ही पढ़ा सूरह साफात आयत नंबर 100। लेकिन कभी गौर किया जब जनाब इब्राहिम ने ये दुआ मांगी तो उस वक्त क्या वो 25 साल के थे? नहीं। 40 साल के थे? नहीं। 50 साल के थे? नहीं। मुअर्रिखीन ने लिखा, जितने मुहद्दिसीन हैं उन्होंने नक़ल की कि कम अज कम जनाब इब्राहिम की इस दुआ के वक्त उम्र 85 बरस थी। 85 बरस के जनाबे हजरत इब्राहिम थे और ज्यादा से ज्यादा 115 साल लिखी है। तारीख के ये अल्फाज हैं कि 85 से लेकर 115 के दरमियान उम्र मुख्तलिफ तहरीर की गई। 85 साल की उम्र थी और बीबी हाजरा की उम्र उनसे कमोबेश 8 से 10 साल कम थी। कम से कम 75 साल की बीबी हाजरा थी, जनाबे इब्राहिम थे 85 साल के और बारगाहे परवरदिगार में दुआ की। दुआ उसी अंदाज में की जैसी पांचवें ताजदार मौला ने कही कि अपने आप को नातवा समझ के दुआ उसी क्राइटेरिया पे थी कि जो इमाम बाकर ने तालीम की। यही वजह है कि सूरह साफात में चंद आयत के बाद अल्लाह ने कहा हमने इब्राहिम की दुआ कबूल की और उसे फर्जंद अता करने की बशारत दी कि उसे फर्जंद अता करेंगे। और जब ये फर्जंद अता हुआ, जनाब इस्माइल सब बच्चे जानते हैं, बुजुर्ग जानते हैं, अता हुआ। अब इसी सूरह साफात में अल्लाह कह रहा है जब इस्माइल इतने बड़े हो गए कि अपने बाप के साथ चलने फिरने और दौड़ने लगे तो अब इब्राहिम ने ख्वाब देखा। देखिए बहुत तवज्जो चाहूंगा, एक नतीजा आपको देना है इंशाअल्लाह। ख्वाब देखा कि मैं बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा हूँ। एक रात देखा, दूसरी रात देखा, तीसरी रात देखा। अज़ीज़ान ग्रामी मुझे इंसाफ से बताइए क्या जनाबे इब्राहिम पर फरिश्ता नाज़िल नहीं होता था? बहुत तवज्जो चाहूंगा, बहुत तवज्जो चाहूंगा। आज जो आज़ादारी पर सवाल उठ रहे हैं ना, यहीं से इंशाअल्लाह आपको मुंसलिक करूंगा। जी। जनाबे इब्राहिम पर जब अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया कि अब बनाओ, मेरा बैत बनाओ, सबसे पहले इब्राहिम ने तामीर शुरू की, इब्राहिम और इस्माइल ने मिलकर खाना काबा की तामीर शुरू की। तो फरिश्ता नाजिल हुआ, यकीनन नाजिल हुआ, ठीक है। हुक्म परवरदिगार लेकर फरिश्ता नाजिल हुआ कि ये काम करो। फिर हुक्म परवरदिगार आया कि अपनी कौम को ये नसीहत करो, अपनी कौम को ये वाज करो, मुसलसल। और जनाब इब्राहिम का जिंदगी गुजारने का एक असलूब था। हम भी असल में इब्राहिमी हैं, ये जो रसूल खुदा तक और बाकी ये इब्राहिमी नस्ल है। तो जनाब इब्राहिम की आदत थी कि बगैर किसी मेहमान के खाना नहीं खाया। ये जनाब इब्राहिम की आदत थी।
अब माजरत के साथ आज हम कुछ उसके उलट ही करते हैं कि हम इंतजार करते हैं कि मेहमान चला जाए तो खाना खाना, कि ये सुन्नत इब्राहीम है कि हमेशा इंतजार करते थे कि कोई मेहमान आए तो मैं खाना खाऊं। अगर कोई मेहमान ना आए तो गली में खड़े हो जाते थे, जी जी, कोई आते जाते मिल जाए उसे बुला लूं, वो ना आए तो बाजार चले जाते थे, किसी को ले आऊं फिर खाना तनावल करूं। एक दिन ऐसा हुआ, ये पूरा कुरान में वाकया सूरह इब्राहीम में मौजूद है, मैं इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ। एक दिन ना कोई मेहमान घर आया, ना दरवाजे पर कोई नजर आया, ना गली में कोई नजर आया, बाजार चले गए, एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हम बहुत सेर शिकन हैं, हमें खाने की तलब नहीं। इंतहाई अफसुर्दा होकर अब वापस चले और दिल में सोच रहे हैं कि आज फाका ही सही। क्यों? आदत है कि मेहमान होगा तो खाएंगे। अब वापस ये दिल में सोच रहे हैं कि आज फाका ही सही। जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दो खूबरू नौजवान खड़े हैं, कुरान पूरा कैसा है, एक एक लफ्ज कुरान से पढ़ रहा हूँ। दो इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़े हैं, उन्होंने सलाम किया इब्राहीम को, उन्होंने जवाब सलाम किया और कहा हम आपके मेहमान हैं। इब्राहीम के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे कुछ 4 दिन के भूखे खाना मिल जाए। न पूछा किस कौम से हो, न पूछा किस कबीले से हो, न पूछा कहां से आए हो, न पूछा नाम क्या है, फौरन अपने घर में बिठाया, घर में बिठाकर और अब खाना सजा दिया गया। खाना सजाया और लुकमा तोड़ा। मैं बच्चों की याद कर रहा हूँ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानती हैं। खाने के असलूब ये हैं कि पहले निवाला मेजबान तोड़ेगा, फिर मेहमान खाएगा, ताकि उसे कोई ताकुफ न हो, उसे शर्मिंदगी महसूस न हो मेहमान को आने वाले को, शहर में खाने के लिए आया। जी जी, पहले मेजबान खाएगा, यह असूल है। बच्चों की याद कर रहा हूँ, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। और खाने का असलूब ये है जो शरीयत ने बताया कि उस वक्त तक खाना खाते रहो जी जी, जब तक मेहमान खाता रहे, अपना हाथ न रोको। अब ये आपने मैनेज करना है कि आपने आस्था खाना है, किस तरह खाना है, लेकिन अपना हाथ रोकना नहीं जब तक मेहमान खाने से सेहरा हो जाए। ये शरीयत का असूल है। मोहम्मद वाले मोहम्मद की जो तालीमात है उसके मुताबिक हमें, मैं कहता हूँ, अक्सर कहता रहता हूँ कि ये मजलिस हुसैन यूनिवर्सिटी है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है कि यहाँ का फारिग तहसीब ना इस दुनिया में नाकाम ना मुराद है और ना आखिरत में नाकाम ना मुराद है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अपने वाला तोड़ा और खाया, देखा कि सामने जो बैठे हैं वो वैसे के वैसे ही बैठे हैं। उन्होंने रोटी की तरफ, लुकमे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। अब कहा बिस्मिल्लाह कीजिए, खाना तनावल कीजिए। अब उन्होंने कहा मैं मिकाईल हूँ और मैं जिब्राईल हूँ, हमें अल्लाह ने आपका मेहमान बना के भेजा है, क्योंकि आप आज खाने पर आमादा नहीं थे। आप आज खाने पर आमादा नहीं थे, कोई मेहमान नहीं आया। अल्लाह ने हम दोनों को आपका मेहमान बना के भेजा है, हमें खाने की हाजत नहीं है, हम खाना खाते नहीं हैं। क्या कहने, खुदा की कसम कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का घराना क्या अजमत और क्या शान है कि वो इब्राहीम के पास वही जिब्राईल मेहमान बनकर आए तो खाने की तरफ हाथ न बढ़ाए। यही जिब्राईल है, मासूम नबी के घर में मेहमान बनकर आया है, लेकिन खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा। क्यों? इसलिए खाने की हाजत ही नहीं है। लेकिन यही जिब्राईल है कि सैयदा के दर पर, यही जिब्राईल है कि सैयदा के दर पर कभी फकीर बनकर, कभी मिस्कीन बनकर, कभी यतीम बनकर रोटियां लेके जा रहा। मोहम्मद वाले मोहम्मद समझे। आज टीवी टॉक शो पे ये बहस ना हो कि क्या ये अफजल है या मियां अफजल है। ये देखो कि जिसके घर की रोटियां आसमान पे जा रही है वो अफजल है, जो आसमान से बतौर मेहमान आके हाथ रोक रहा है वो अफजल है।
कि इब्राहिम ने ख्वाब देखा, अल्लाह ने किसी फरिश्ते के जरिए ये पैगाम क्यों नहीं भिजवाया कि अपने बेटे की गड़ी पर गर्दन पे छुरी रख दो? नहीं, ये हुक्म नहीं दिया। अगर फरिश्ता देते भेजते तो ये नबी के लिए हुक्म होता। अल्लाह ने ये कायदा बनाया कि जब भी हम इश्क का इम्तिहान लेते हैं तो हुक्म नहीं करते, मैदान में बुला के इश्क का इम्तिहान लेते हैं कि ये कैसा बड़ा आशिक है। यही वजह है कि इम्तिहान लिया और बुलाया। और अजीजान ग्रामी, वाकया आपके सामने है, बस एक नुक्ता आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं कि इधर इस्माइल को लिटाया, वहां परवरदिगार ने इस्माइल की जगह दुम्बा भेजा जिस पर छुरी चली। आज तमाम मुसलमान इसी तासी में ईद उल अजहा पर मुहर्रम से 30 दिन पहले ये अमल करते हैं कि दुम्बा, बकरा, बैल, गाय, ऊंट, भेड़, बकरी ज़िबह करते हैं। लेकिन हर फिक के मुताबिक मुसलमान के जितने फिरके हैं अपनी अपनी सोच और फहम के मुताबिक जिस शय को ऐब समझते हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा, जिस चीज को ऐब समझते हैं वो ढूंढते हैं कुर्बानी के जानवर में कि कहीं ये ऐब तो नहीं, कहीं ये काना तो नहीं, कहीं ये लंगड़ा तो नहीं, कहीं इसका कान तो नहीं कटा हुआ, कहीं इसकी जबान तो नहीं कटी हुई, कहीं इसका दांत तो नहीं टूटा हुआ। अपने कहीं जो जो ऐब जो समझता है कोशिश ये होती है कि वो ऐब उसमें ना हो। अज़ीज़ान ग्रामी, यहाँ किबला अज़हर हसन ज़री साहब, मौला उनको कर जन्नत नसीब करे, उनके जुमले आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए बुलंदतर सलावत। इंतहाई लतीफ जुमले। ज़री साहब फरमाते थे कि ये जो ढूंढ रहे हैं मुसलमान कि इसका काना तो नहीं है, लूला तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, इनसे पूछिए ये सारा साल गोश्त खाते हैं। कभी किसी कसाई की दुकान पर जाके पूछा ये जो तुम जानवर का गोश्त दे रहे हो? नहीं, आप मेरे साथ नहीं, पूरा साल गोश्त खाते हैं। लेकिन किसी कसाई से जाके किसी मुसलमान ने ये नहीं पूछा कि ये जो तुम हमें ज़बीहा का गोश्त दे रहे हो, आया इसका कान था कि नहीं था, इसका दांत था कि नहीं था, ये काना तो नहीं था, ये लंगड़ा तो नहीं था, ये लूला तो नहीं था। तो जवाब आता है इसलिए नहीं पूछते कि वो तो हम सारा साल खाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने बेऐब आया था अल्लाह की तरफ से। इस्माइल की जगह अल्लाह ने बेऐब भेजा था, इसलिए उसकी जगह हम जो कुर्बानी करें कम से कम वो बेऐब हो। तो मैं तमाम मुसलमानों से सवाल करूंगा कि जो बात आप ईद उल अजहा के दिन बड़ी गौर से देखते हैं कि बेऐब की जगह पर ऐबदार ना हो, तो जब रसूल इस दुनिया से गए, जब रसूल इस दुनिया से गए तो फिर क्यों ना देखा कि बेऐब की जगह हम ऐबदार बिठा रहे हैं। ओ प्यारे रहमतुल्लाह बुग़्ज़ अलैह यही वजह है हम कह रहे हैं कि बेऐब की जगह बेऐब भी आएगा। और यही वजह है कि जब 23 साल के बाद मेरे मौलाए कायनात खिलाफत पर आए तो सारी दुनिया, सारे असहाब बैठे हैं परेशान हाल। क्यों कि मिंबर पर जहां रसूल बैठते थे, जब पहला आया तो उससे निचली सीढ़ी पे बैठा, दूसरा आया उससे निचली सीढ़ी पर, तीसरा आया सबसे आखिरी सीढ़ी पर। अब सब परेशान, क्या अली बैठेंगे कहाँ? मिंबर पर जगह ही नहीं रही। नासिर के जुमले याद आ गए, मौला उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लामा नासिर शहीद के जुमले में दोहरा रहा हूँ। अब जो अली आए, खरामा खरामा सर पर रसूल कायनात का अमामा है, दोष पे रसूल कायनात की अबा है, पहली सीढ़ी पर पैर रखा, तीसरे को रौंदा,
वापस आ गया। वापस आ गया, यानी 23 साल तक हक अपनी जगह पर नहीं था। और अज़ीज़ान गिरामी, आप तमाम मोमिनीन, जब होता है, जब जिक्र अली आता है, जब मोहम्मद वाले मोहम्मद का तज़किरा होता है, नारे हैदरी बुलंद करते हैं। कभी सोचा आपने कि फकत हमारे बुजुर्गों ने अगर लफ्ज नारे हैदरी रखा है, जरूर पड़ी मोहम्मद वाले ये इसकी फिलॉसफी क्या है? और कीजिएगा, ये भी हो सकता था नारे अलवी, नारे मुस्तफवी। आप परेशान हो गए। नारे मुस्तफवी का जवाब भी या अली ही है। क्यों? अली ने, रसूल ने हर मकाम पर या अली ही कहा। नारे मुर्तज़वी, लेकिन वजह क्या है कि जब नारा लगता है, नारे हैदरी लगता है। जरा आइए खैबर के मैदान में। अच्छा, एक अजीब कमाल है, हम पर एक एतराज और है, हर वक्त खैबर का तज़किरा, हर वक्त खैबर का तज़किरा। तो मैं कहूंगा चले आप जंगे जमल का तज़किरा करें। आप जंगे जमल का तज़किरा करें, आप जंगे सिफीन का तज़किरा करें, करें तज़किरा। आप जंगे नहरवान का तज़किरा करें, तब हमें कहेंगे नहीं, कहीं पे वालिदा है, कहीं पे मामू है। वो जिक्र इसलिए नहीं करते, कहीं बात वालिदा पे आती है, कहीं बात मामू पे आती है, कहीं बात कहीं पे चली जाती है, अपने अवाइदात पे जाती है। अच्छा चले इन जंगों का तज़किरा ना करें, जरा खैबर का तज़किरा करें। अच्छा, हमसे ये तकाजा है कि हर वक्त खैबर का तज़किरा क्यों? तो हम भी एक सवाल करने का हक रखते हैं कि आप खैबर का तज़किरा क्यों नहीं करते? लॉजिक दे ना, कोई लॉजिक तो दे। आप अपने मिंबर से, आप अपने स्टेज से, आप अपनी मस्जिद के मेहराब से खैबर का तज़किरा क्यों नहीं करते? तो जवाब यही है कि वहां पुरानी यहूदी ज़हनियत के लोग हैं। और देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं कि खैबर में इंतहाई मुख्तसर वक्त है, मैं इंशाल्लाह कंक्लूड कर रहा हूं। खैबर में जब मरहब आया, कुछ लोग कुछ खुतबा पढ़ देते हैं, लेकिन ये गलत है, मैं दुरुस्त करना चाहूंगा इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कि मरहब ने कतई ये नहीं कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा, ये नहीं कहा। मरहब ने ये जुमला नहीं कहा। मुस्तनद तारीख है कि जैसे ही मरहब सामने आया, उसने कहा पूरा खैबर मुझे मरहब के नाम से जानता है। मरहब के नाम से जानता है। पूरा खैबर मुझे मरहब के नाम से जानता है। और इधर मौलाए कायनात ने क्या जवाब दिया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मैं भी लेके जाना चाह रहा हूँ कि हम नारे हैदरी क्यों कहते हैं, कि नारे हैदरी से क्यों कहते हैं, नारे मुर्तज़वी क्यों नहीं कहते, नारे अलवी क्यों नहीं कहते। मैं दलील पेश कर रहा हूँ। जवाब दिया मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जैसे ही कहा ना कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मरहब को अपनी माँ याद आ गई। मरहब को अपनी माँ याद आ गई कि माँ ने कहा था कि हर एक से लड़ना, लेकिन हैदर से ना लड़ना। मैं यही जुमला कहूँ, खुदा की कसम, यहूदी की बीवी थी मरहब की माँ, यहूदी की बीवी थी। यहूदी की बीवी होके उसने पहचान लिया कि हैदर से लड़ना नहीं है, इधर रसूल की बीवी।
इतना इदराक रखती है कि जब मुकाबिल हैदर आए तो लड़ना नहीं है, आगे ऊपरी में बैठकर। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं वक्त ज्यादा शायद लेके माजूम कर रहा हूँ। देखिए, जब कहा ना कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, तो मरहब को अपनी माँ याद आ गई। शायद हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए लफ्ज रखा नारे हैदरी, कि जहां लगेगा वहां मुखालिफ को उसकी माँ याद जवाब देते हैं नाराए हैदरी। मुझे बताते हैं कि हमने हलाल तरीके से दुनिया में आए। जब भी हाथ बुलंद करके या अली कहते हैं तो अपनी माँ को दुआएं देते हैं। ये घराना वो घराना है, लेकिन इस अजमतों वाले घराने को, इस मुकर्रम घराने को, इस मुकद्दस घराने को दुनिया ने तस्लीम न की। आज मेरा दिल चाहता है कि आज हुसैन के शशबाहे का तज़किरा हो। आपने करबला के मसाइब सुने हैं, लेकिन खुदा की कसम एक जिहद में आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ, बिस्तर तक रोते जाएंगे। कोई शक नहीं कि अब्बास के बाजू कलम हुए, मेरे मौला हुसैन की कमर झुक गई। इसमें कोई शक नहीं कि जब अली अकबर के नेजा लगा, बर्छी का फल बर्छी की यानी जब सीने में टूटी, तो मेरे मौला ने कहा कि मेरी आंखों की बीनाई चली गई। और मोहम्मद के गुर्द लगे, जीन से जमीन पर आए। जनाबे कासिम जब तक जीन पर रहे, कासिम से जमीन पर आई तकसीम हो गई। लेकिन इमाम मजलूम, ये तमाम वाक़यात मेरे मौला हुसैन ने आंखों से नहीं देखे, आंखों से नहीं देखे। अब्बास के बाजू कट गए, उसके बाद अब्बास के इलाके में पहुंचे। अली अकबर के बर्छी लग गई, हुसैन ने आंखों से नहीं देखा, बाद में पहुंचे। और मोहम्मद के गुर्द लग गए, हुसैन बाद में पहुंचे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। लेकिन पूरे 72 में वाहिद अली असगर है कि हाथों में है हुसैन। और हुसैन ने अपनी आंखों से वाहिद तीर लगते देखा, अली असगर के गर्दन में लगा। सहशोबा तीर है, किसी को भी न बर्छी लगते देखा, न गुर्द लगते देखा, न तलवार लगते देखा, न नेजा लगते देखा। लेकिन हाय रे किस्मत हुसैन की, चश्माए के तीर, सहशोबा तीर गले पे लगते देखा। अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको किसी गम में न रुलाए, सवाए गम हुसैन के। और चश्माए का लाश न लिया और आके माँ से कहा कि मैं इसे ले आया हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि मैं इसे जमीन में दफन कर दूँ। खैमे के पीछे अपनी तलवार से लहर बनाई छोटी सी। 3 जुमले कहे थे मेरे मौला ने, गुर्बत के 3 जुमले और जहमत तमाम। मजलूम, जब आपने किसी मासूम बच्चे के लिए ना बाजार से कोई अच्छा जोड़ा लेके आते हैं, अच्छे कपड़े लेके आते हैं और लाके
जब आप उसकी माँ को देते हैं कि ये जरा इसे पहनाओ, और जैसे ही बच्चा वो कपड़े से तंग कर ले, आप कहते हैं ये बेटा हम ज्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन हाय रे गुरबत हुसैन की, मेरे मौला हुसैन ने जब अली असगर को लहद में लिटाया, और जब लहद में लिटा के मेरे मौला हुसैन ने देखा तो कहा, असगर मेरे लाल लहद में लेटे हुए तुम और हसीन लग रहे हो। अल्लाह मौला आपने किसी का में न रुलाए, सवाए गमे हुसैन के। हाँ, दूसरा जुमला, जब मिट्टी डालने की बारी आई ना, जब मिट्टी डालना चाहते थे असगर के ऊपर, तो क्या ना इस्तिगासा बुलंद किया, न नाना को बुलाया, न बाबा को बुलाया, न भैया हसन को बुलाया, बल्कि दरियाए फरात की तरफ रुक करके कहा, अब्बास मैं हुसैन अकेला रह गया। तीसरा कयामत के जुमला और कहमतें तमाम। आइए को मौला मुझे पढ़ने की तौफीक दे और आपको सुनने की हिम्मत अता फरमाए। हाँ दादारो, जब मुख्तार ने एक एक करके लाइनों को बुलाया, मुख्तार के दरबार में एक लाइन आया, उन्होंने कहा ये बता ए लाइन, मुख्तार ने कहा ए लाइन ये बता मेरे मौला हुसैन ने करबला में कितनी लाशें दफनाई। कहा मैं आपके मौला हुसैन ने करबला में सिर्फ एक अपने चश्माए की लाश दफन की। कहा अच्छा वो क्या सोच रहे थे, उन्होंने क्या कह रहे थे। कहा ये तो तेरे मौला जाने हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जब कब्र बनाते देखा ना तो मैं थोड़ा सा नजदीक हुआ और मैंने कान लगा के सुना कि ये क्या कह रहे हैं। हाँ, जब मैंने जाके देखा ना, कहा मैंने सुना मेरे मौला तुम्हारे मौला हुसैन रो के एक जुमला कह रहे थे कि मैं ए बेटे असगर, ए मेरी जान, ए मेरे लाल, मैं जानता हूँ मेरा अब्बास घोड़े के सुनों को बर्दाश्त कर लेगा। मुझे ये यकीन है कि मेरा अली अकबर घोड़ों के सुनों को बर्दाश्त कर लेगा, और ना मोहम्मद घोड़ों के सुनों को बर्दाश्त कर लेंगे। कासिम के टुकड़े सुनों को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन है मेरे शशमाए, तू तो फूल जैसा है, तू घोड़े के सुनों को बर्दाश्त न कर पाएगा, इसलिए मैं तुझे जमीन के नीचे ले जा रहा हूँ। हाय रे गुरबते हुसैन के सब पर घोड़े दौड़े, इधर असगर का लाशा नेज़े पर
तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है, चादर भी लुट चुकी है, मुँह किस तरह छुपाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। तेरे दूल्हे को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है, तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरी जान जा रही है, ये सोच सोच हंस गए, इस फूल से गले पर ये तीर
मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। नेज़े से गिर रहा है गरना सजर तुम्हारा, दिल रोता है हमारा, दिल हाथ तो बंधे हैं, सर किस तरह उठाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। झूले के साथ बेटा मेरे हाथ जल गए हैं, साले में हंस रहे हैं, तेरी आखिरी निशानी मैं किस तरह बचाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया, जिंदा में 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 नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया। सजा दे सकीना को, सजा दे सकीना को, मरने से बचा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया। सजा दे सकीना को, सजा दे सकीना को, मरने से बचा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा 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 भैया। जीती थी बात के मैं पाठ सवेरों में, अब मेरी गुजरती है जिंदा के अंधेरों में, इस वक्त भी रस्सी में, इस वक्त भी रस्सी में है मेरा गला भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा हवा भैया। जिसने मुझे मारा